directional derivative, we can find equation of a tangent line. So yesterday we saw that equation of a tangent line to a level curve we can find by using the concept that gradient is orthogonal to this level curve, है ना? If you are writing a level curve fxy is equal to c, so if suppose this fxy, this is constant along some curve rt is equal to gti plus htj. So this is your x, this is your x, this is your y. So your df over ds, if you will find with respect to this parameter, so it was coming gradient. अगर I am finding df over dt, so df of dt was coming del f over del x dx by dt plus del f over del y into dy by dt is equal to 0, because f is a function of xy, xy is a function of t. So after solving, I am writing in the dot product, it was coming del f dot dr by dt. So this is your tangent to the level curve and this is gradient. It was coming is equal to 0. और इसे velocity vector भी कहते हैं, tangent vector. So if you have some level curve, so what you got, along the level curve at every point, this, if it is your dr by dt, at this point it is your dr by dt tangent to the level curve, so this will be orthogonal, del f will be orthogonal to this. So by using this concept you can find the equation of a tangent line to any given curve. हम ये निकाल सकते हैं. एक प्रॉब्लम कंसीडर करी थी हमने इलिप्स वाली, दैट वाज डन आई थिंक. एग्जांपल 4, one ellipse was given to you, x square by 4 plus y square by 2. So find the equation of the tangent to the ellipse. इसकी हमें equation of tangent to the ellipse निकालनी है at the point -2, 1 इस पॉइंट पे डायरेक्ट कैलकुलेट करना था. So I will use this concept. So this ellipse I can write as a level curve. Can I write it? If I am taking fxy is equal to x square by 4 plus y square, so this ellipse can be considered as a level curve of this function. इसे अगर मैं is equal to 2 put कर दूं, it will become a level curve, है ना? So this is your fxy. You can find its gradient. It will be 2x by 4, so x by 2 I plus 2yj. So when you know this, back at the point -2, 1, it will be how much? Minus I plus 2j. Okay, so you got the gradient vector which is orthogonal to dr by dt. So what is equation of tangent line? Equation of tangent line at -2, 1. बताइए. क्या होगी? सर fx at p naught x minus x0. fx at p naught लगभग कितना आ गया है? -1 है ना? ये होगी fx p naught x minus का फॉर्मूला बनाया था, x minus x0 x0 plus fx p naught y minus y naught is equal to 0. So fx p naught you have calculated already. P naught means this point, so it was -1 into x minus x naught. X naught is this point, -2, so plus 2 and plus, sorry, fy p naught. Fy p naught is 2, so twice y minus 1 is equal to 0. So solve कर लें आप, so how much it will be coming? So minus x minus 2 plus 2y minus 2 is equal to 0, or you can say x minus 2y and plus 4 is equal to 0. So it is the equation of tangent line. इसे अगर आप प्लॉट करें इलिप्स को,
देखो इसे प्लॉट कर सकता हूँ मैं, इसकी माइनर एक्सिस, दिस इज योर मेजर एक्सिस, 2 से डिवाइड कर दें तो यू हैव x स्क्वायर बाई 8 plus y square by 2 is equal to 1. So major axis is 2 root 2, minor axis is root 2. So if you plot it, this will be the ellipse like this. दोबारा बना देते हैं. So your ellipse will be like this. Suppose you have this. This is your xy axis. So ellipse will be like something like this. Okay. So at the point you have at a point point is -2, 1. So x y axis -2. ये कितने आ गए इसकी रेडियस आपकी? Twice √2. इट इज √2 है ना. सो -2, तो -2, 1 क्या आएगा आपके पास? 0, -1, -2, -2 यहाँ आ गया पॉइंट एंड 1. सपोज इट इज सब पॉइंट -2, 1 है ना. ये इसके ऊपर होगा पॉइंट ऑफ कोर्स ये. एंड व्हेन नाउ यू विल टेक, so what is the gradient? I told you gradient will be what? If it is a level curve, so gradient will be orthogonal. इस तरीके, इस पॉइंट पे gradient will be like this. This is your gradient del f at this point -2, 1. और tangent line क्या हो गई? This is the equation of a tangent line. Equation of a tangent जो अभी हमने निकाली है पीछे. How much it was coming? x minus 2y plus 4 is equal to 0. This is your tangent line at this point. ठीक है? So it will be looking like this. Geometry figure मैंने इसकी बना दी है आपकी. This gradient, there are algebra rules of gradient. Algebra rules means sum of two functions, then its derivative. Algebraic rules means del of f plus g. It will be how much? Del f plus del g. As I told you, it is the operator. ये del क्या है भाई? It is operator. फंक्शन पे ऑपरेट होता है ना. ऐसा नहीं होता कभी कि del f is equal to del g है तो del से del कैंसिल हो गया. It is not like the case है ना, because it is operating. Keep in mind. So this is the operator which is like. अब ये ऑपरेटर बहुत सारे होते हैं जो हर प्रॉपर्टी, जैसे साइन है, लॉग है. लॉग इज आल्सो ऑपरेटर, बट log of f plus g is not equal to log f plus log g, है ना. इट इज नॉट लाइक दैट. तो कुछ ऑपरेटर्स हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के ऑपरेटर हैं, इंटीग्रेशन ऑपरेटर है जो ये फॉलो करते हैं. डिफरेंस रूल, इनफैक्ट प्लस माइनस दोनों में इट विल बी फॉलोइंग. सिमिलरली constant multiple, if you have kf, it will be equal to k of gradient f. K will come outside, k is a scalar. Product rule, if you are finding gradient of product of two function, it will be behave like differential operator, क्योंकि ultimately del means what? It has a differentiation, ना vector function है, but del f over del x, del f over del y it has, so it will be following differential property. That means first function del of g plus g del of f. And similarly division property, it will be holding if you will be finding gradient of two functions, fraction of two functions, it will be g of del f minus f of del g, or what is in denominator? g Upon square. G square. g square ना, ये आता है. इसे आप चेक कर सकते हैं कोई फंक्शन लेके, यू कैन वेरीफाई इट. तो दो फंक्शंस ले लीजिए आप, एफ एक्स इज इक्वल टू सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी ले लीजिए कुछ, and then you will see it will be holding. So these are the algebraic properties, algebra rules
फिर इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स है, यू कैन ट्राई सिंपल प्रॉब्लम्स है। सब फाइंडिंग द ग्रेडियंट, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन से प्रॉब्लम आपकी 6 प्रॉब्लम है। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन वाई। So you have to find gradient. Find gradient at 4 comma minus 2. 4 comma minus 2 पे gradient निकालें इसका, and then find the level curve. Level curve इसका find करना, what is the level curve? Find level curve that passes through the given point. Given point मतलब इसी पे, that passes through 4 comma minus 2. डेल एफ तो आप निकाल सकते हैं भाई, इसका डेल एफ बताइए जरा, व्हाट इज डेल एफ? यस, डेल एफ ओवर डेल एक्स इज हाउ मच? tan इनवर्स। y कांस्टेंट रखेंगे तो बताओ। uh, tan इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपॉन 1 minus x square. 1 plus x square. 1 upon 1 plus x square. ओके, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मींस x अपॉन y स्क्वायर X upon y square और into 1 upon y कॉमन ले लेंगे सर, कांस्टेंट है ये y, चलो वो तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और रूट x का हो जाएगा माइनस 1/2 और 1 मिनट पेन नहीं रूट एक्स सर, रूट एक्स नीचे आ पेन जाएगा। की पेन लीजिए बेटा, ठीक है। दिस इज योर आई। ओके। हाँ, सिमिलरली डेल एफ ओवर डेल वाई, तो ये तो हो ही रहा है 1 प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब इसमें रूट एक्स विल बी कॉमन, कांस्टेंट, तो रूट एक्स को इधर रख लीजिए। माइनस रूट x अपॉन y स्क्वायर। यस, माइनस 1/y स्क्वायर। ठीक है। यस सर। तो इसको नाउ यू कैन फाइंड इट एट अ पॉइंट 4 कॉमा माइनस 2। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, अरेंज कर लेंगे टर्म्स, तो आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी कमिंग -1/16i एंड -1/4, है ना। अगर ये डिफरेंशिएशन पता आपको तो वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। इट इज योर ग्रेडियंट, देन दे आर सेइंग फाइंड द लेवल कर्व दैट पासेस थ्रू दिस, यानी कि हमें लेवल कर्व निकालना है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो पहले एफ ऑफ 4 कॉमा माइनस 2 की वैल्यू निकाल ले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, क्योंकि जो वैल्यू निकल के आएगी that will be give you the fxy is equal to c, the level curve. So 4 minus 2, it will be how much? Tan inverse root 4 is 2 upon minus 1 45 डिग्री was 45 डिग्री minus pi by 4 -1 माइनस आ रहा है ना। यस सर। तो it is your value fxy is equal to, इसके अलावा हमें कर्व निकालना है, तो I will put tan inverse root xy is equal to constant जो पुट करते हैं इसके इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि हमें निकालना लेवल कर्व दैट पासेस थ्रू दिस। तो लेवल कर्व विल बी व्हाट? tan inverse root x upon y is equal to minus pi by 4, fxy is equal to c। c में ये वैल्यू रखनी थी हमें, इससे इधर ले आए, tan inverse minus pi by 4, it will be -1, so it will be giving you y is equal to minus root x, है ना। it tan minus pi by 4 -1 हो जाएगा, so it is the level curve of this, y is equal to minus root x। so it was one problem, one more problem, और बीच में कुछ प्रॉब्लम से आप ट्राई कर सकते हैं इसका, इसी टाइप की प्रॉब्लम से लेवल कर्व फाइंड करने की। लेवल कर्व्स, लेवल सरफेसेस, 3 डायमेंशन में होगा तो लेवल सरफेस पे आएगा। बट एक जो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है विच आई एम टेकिंग अप हियर, 29 प्रॉब्लम, पेज 791। लेट fxy is equal to x square minus xy plus y square minus y. Function is given to you x square minus xy plus y square minus y. Find the
directions denoted by u. U है आपका. Find the directions u and the values of duf 1 comma minus 1. ये क्या चीज? What is this duf 1 comma minus 1? Directional derivative. Yes. Direction derivative at the point 1 comma minus 1 in the direction u. और u क्या है? हमें पहले u निकालना है, फिर ये निकालना है. किस जगह पे निकालना है? They are asking at different points. For which duf 1 comma minus 1 is largest. Duf 1 comma minus 1 is smallest. Duf 1 comma minus 1 is 0. Duf 1 comma minus 1 is 4. And duf 1 comma minus 1 is equal to minus 3. Means they are giving you different values of the directional derivative and they are asking for the direction and also the value. है ना? यहाँ पे तो वैल्यू पता है आपको, यहाँ वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ वैल्यू निकालनी है. यहाँ पे तो पता है वैल्यू इसकी 0 आ रही है, यहाँ 4 आ रही है, यहाँ -3. तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन. एट व्हाट डायरेक्शन इट विल बी लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, 0, 4 एंड -3. बताइए, करा ऐसा क्वेश्चन किया है? पहले 3 पार्ट तो किए शायद. क्यों? यस, Yes, sir. बताओ. चलो तो सॉल्यूशन यही कर देते हैं. राइट. फर्स्ट पार्ट बताइए, वेयर दिस इज द लार्जेस्ट, duf -1. in the In the direction of del f. डायरेक्शन ऑफ del f. ठीक है, फॉर्मूला याद होगा आपको. duf was del f mod del f cos थीटा, है ना? तो cos थीटा पे डिपेंड था आपका. तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम +1, दैट मींस थीटा शुड बी 0. तो थीटा वाज द एंगल ऑफ u एंड del f के बीच में जो एंगल था, दैट वाज योर थीटा. तो ये कब होगा? जब थीटा 0. थीटा 0 मींस यू शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ del f. तो del f निकालने, वो इसकी जो डायरेक्शन होगी, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, है ना? चलो, तो व्हाट इज del f बताओ. del f at the point 1 comma minus 1. So what is del f? 2x minus y I and plus with respect to y, so minus x plus 2y minus 1j. ठीक है? तो at the point, इसे हमें निकालना at the point. So at the point 1 comma minus 1, it is coming how much? 3i minus 1 रखा आपने, minus 1 minus 1 minus 2 -4 minus 4j. ठीक. So this is your del f. So u will be what? Divided by its mod. 3 by 5i. It is a direction. So the direction is this. And what is the value भी पूछी है ना? Find the values. तो values के लिए क्या करना होगा? वैल्यू क्या थी आपकी? ये है वैल्यू mod del f cos theta. तो cos theta, theta तो 0 1. What is the value? Mod of del f. So how much mod of del f? Under root 3 square plus 5 आ जाएगा. ठीक, it is the value. तो ये देखो लार्जेस्ट वैल्यू 5 आई है. अगर कोई पूछता है यहाँ पर duf -1 इज इक्वल टू 8, तो क्या आप निकाल सकते थे? कोई यहाँ पे 4 की जगह 8 कर दूं अगर मैं ऑप्शन में, तो ऑब्जेक्टिव में. यस सर. तो क्या सही थीटा उत्तर की है? वैल्यू पता चल जाएगी. नहीं, अगर मैं यहाँ पर 8 लिख देता, फाइंड duf -1 एट वैल्यू नो सर, 8. गलत हो जाता सर. मैक्सिमम 5 जाती है ना वैल्यू. हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि हमने लार्जेस्ट वैल्यू निकाली, ये आ गई 5.
तो देखो क्वेश्चन जो बनाया उन्होंने इसलिए बनाया, यहाँ 4 पूछा है या -3। अब ये -3 है, तभी हम स्मॉलेस्ट निकालेंगे, तो स्मॉलेस्ट जो होगा वो हमें मालूम है क्या होगा, -3 से, -3 छोटा होगा सर। हाँ है ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें मालूम है एक ही डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ पर 4 पूछा है, अगर यहाँ 8 लिखा होता तो ये ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर सकते थे कि लार्जेस्ट वैल्यू 5 है, तो इट्स नॉट पॉसिबल इन एनी डायरेक्शन इट विल गिव यू 8 वैल्यू, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन माइंड में आया, मैंने आपको डिस्कस करा, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से मिल जाते हैं। सो हियर यू गॉट द लार्जेस्ट वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन। सिमिलरली आई कैन फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, चलो निकालते हैं बी पार्ट। So for smallest, I know the direction of smallest value of DUF is क्या थी, एंटी smallest पैरेलल होगा सर। एंटी सर एंटी पैरेलल, पैरेलल Minus. हो जाएगा। माइनस del f is the direction of minus del f, है ना, you know this thing। अगर ये del f है तो u should be opposite to it, पाई एंगल होना चाहिए, ये u होना चाहिए। तो वो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ से, फिर u हमने निकाल ही लिया है ना, तो u विल बी व्हाट, माइनस साइन ले लीजिए इसका बस, तो u सर, इज, 4/5j। हाँ पहले i का लिख दो आप, तो -3/5 i आई प्लस कैप 4/5 4/5j। j कैप। चलो ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या है, क्या हो जाएगी भाई, एट अ पॉइंट वैल्यू भी निकाल ली ना हमें, व्हाट इज वैल्यू, सर वही रहेगी शायद। अरे यार स्मॉलेस्ट भी वही और लार्जेस्ट भी वही, क्या हो जाएगा, मॉड है। अरे फॉर्मूला ये था ना, मॉड डेल एफ तो कॉस cos थीटा, फॉर्मूला cos याद रखो। थीटा, यस सर। अब थीटा पाई रखोगे तो क्या हो जाएगा, -5, सर माइनस हो जाएगा सर। -5, हाँ हमारे से मॉड तो अंदर रहेगा। है ना, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई इसकी -5, क्योंकि मॉड डेल एफ कॉस थीटा है फॉर्मूला, वैल्यू का फॉर्मूला तो ये है ना। तो -5 देखो, इसमें मैंने बताया था कि -5 आएगी, यानी कि इससे छोटी, -5 स्मॉलर देन -3, यू नो, माइनस साइन है क्योंकि, इसलिए यहाँ -3 पूछा है। कोई यहाँ पे पूछ देता साहब -7, तो इट विल बी एन एब्सर्ड क्वेश्चन बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। आप लिख देंगे -7 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -5। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, नो चेंज। नो चेंज के लिए क्या होता, डायरेक्शन ऑफ नो ऑर्थोगोनल। चेंज, सर π/2 होना चाहिए सर एंगल। द डायरेक्शन ऑफ नो चेंज इज ऑर्थोगोनल टू द डेल एफ, डेल एफ के ऑर्थोगोनल। अगर आपको पता है कि अगर कोई वेक्टर डेल एफ है, कुछ भी है, इसके ऑर्थोगोनल मैं यहाँ भी जा सकता हूँ और ऐसे भी जा सकता हूँ, है ना, यूं यूं, तो इसके ऑर्थोगोनल वेक्टर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यू विल बी व्हाट, साइन अल्टरनेट कर दें आप बस इसके। तो एक बार जैसे हमारे पास डेल एफ की वैल्यू क्या है, डेल एफ हमने निकाला था, ये था 3, ये इट इज अ डायरेक्शन 3/5i -4/5j, तो इट विल बी व्हाट, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोएफिशिएंट देखिए आप, कोएफिशिएंट भी इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना, अब 1 1 नहीं है यहाँ पर, तो क्या बनेगा ऑर्थोगोनल, 4/5 i आई कैप प्लस प्लस 3/5j, 3/5j। है ना, जो i का कोएफिशिएंट है वो j का बन जाएगा, j का i का बन जाएगा, और दूसरा होगा और u इज इक्वल टू -4/5i -3/5j, ना, क्योंकि u वेक्टर आपका क्या था, ये था u वेक्टर, तो इसके ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होंगे, जो डॉट प्रोडक्ट 0 देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपके, तो या तो निकाल लो उस वेक्टर को मान के, सपोज दैट दैट वेक्टर इज ai प्लस bj, a b की वैल्यू निकाल ले, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि j का कोएफिशिएंट विल बिकम कोएफिशिएंट ऑफ i कोएफिशिएंट विल बिकम j एंड साइन शुड बी अपोजिट। तो अगर यहाँ ये प्लस था तो हम माइनस, यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, और एक बार दोनों माइनस हो जाएंगे। अब आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ दोनों माइनस होंगे या एक प्लस एक माइनस होगा, ठीक है सर, वही रहेगा सही दोनों। है, सही है सर। 3/5i -4/5j, हाँ तो इसके ऑर्थोगोनल, तो कोएफिशिएंट्स तो इंटरचेंज हो जाएंगे, बस साइन आपका एक बार ये हो जाएगा, एक बार ये, ठीक है, जो अगर u प्लस है तो दूसरा u माइनस दोनों, ओके।
अब डी पार्ट देखिए, डी पार्ट जो है डिफरेंट है। जैसे लास्ट क्लास में एक ने पूछा था कि सर अगर इन तीनों के अलावा कोई और एंगल होगा तो व्हाट विल हैपन, है ना। ये वही पार्ट है डी, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4। तो 4 जो आपकी वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये इन तीनों के अलावा कोई मुख्तलिफ डायरेक्शन है, इट इज अ डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि वो 3 डायरेक्शन तो आपको पता है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, जीरो। अब जो 4 होगा, ये 4 कहाँ होगा, कहीं भी आ सकता है उसके बीच में, है ना। आपको दिख ही रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो 5 आई थी वो कब आई थी, जब यू के डायरेक्शन में, यू वाज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल एफ। तो हमें बताना है कि 4 कब आएगी वैल्यू इसकी। तो इसका मतलब आई विल फाइंड डायरेक्शन एट व्हाट डायरेक्शन इट विल बी 4। लुक एट हियर। एंगल चेंज करना होगा ना फिर। हाँ, वो एंगल हमें नहीं पता क्या है, वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना। सर 0 यस और सर। 90 के बीच में आएगी कहीं भी आ सकता है यार। एंगल। हमें तो डायरेक्शन, हमें एंगल नहीं 45। निकालना। आई एम नॉट इन, हमें यस एंगल सर। नहीं निकालना, हमें तो डायरेक्शन निकालनी, किस डायरेक्शन में ये वैल्यू 4 देगा। और वैल्यू तो ऑलरेडी है ही आपके पास, है ना। आपको वैल्यू गिवन है, डायरेक्शन निकालनी। क्वेश्चन में ये चेंज कर दिया है कि वैल्यू इज 4, व्हाट इज द डायरेक्शन। यहाँ हमें वैल्यू भी नहीं पता थी तो हमने निकाला। चलो, सर तो डायरेक्शन निकलेगा कब, जब एंगल पता करेंगे तब तो। नहीं तो हमें तो वेक्टर निकालना है u। हमने मान लिया, लेट अस सपोज u इज द डायरेक्शन, u1i प्लस u2j। अगर हमें u1 u2 पता चल गया तो बस वी आर डन। लेकिन डायरेक्शन, अगर ये आपकी डायरेक्शन है तो यू नो इट शुड बी यूनिट वेक्टर, सच दैट इसका मॉड क्या होना चाहिए, 1। 1। तो यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे और फिर सॉल्व करके u1 u2 की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ गई बात। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये कि हमने, लेट अस सपोज द डायरेक्शन इज दिस u, वेयर u इज यूनिट वेक्टर, और यू कैन से u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो बन गई है। माय ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड u1 u2। अगर u1 u2 निकल गया तो वी गॉट द डायरेक्शन। एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक। सेकंड कंडीशन हमें क्या, हमें गिवन है कि DUF एट 1, -1 इज हाउ मच, 4। ये हमें गिवन है ना, इसी पे तो निकालना है। एट व्हाट दिस 4 हमें गिवन है। यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, DUF को बाय द फॉर्मूला सर डेल डेल एफ। एफ सर मतलब मोड एफ डेल एफ। डॉट नहीं, अभी तो मॉड में नहीं, लिखेंगे। अभी तो फॉर्मूला लिखो, डॉट u इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब डेल एफ 1 - 1 तो हमने कैलकुलेट किया था अभी, क्या आया था, 3i - 4j। इसकी वैल्यू पुट कर दी है, इसकी मॉड नहीं, ध्यान रखो, देखो डेल एफ अभी वेक्टर क्वांटिटी ले रहा हूँ मैं, 3i - 4j। u आई हैव सपोज्ड ऑलरेडी, u1i प्लस u2j इज इक्वल टू 4। यहाँ से आपको डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यू विल बी गेटिंग वन इक्वेशन, हाउ मच, 3u1 3u1 माइनस माइनस 4u2। 4u2 इक्वल टू 4। ये इक्वेशन ये है, एक ही है। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये क्वाड्रेटिक में है लेकिन, तो 2 रूट्स आएंगे, कोई बात नहीं। सपोज आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ u2, u1 u2 किसी की निकाल लीजिए, u2 निकाल लेते हैं। तो u2 इज हाउ मच, इसे इधर ले जाए तो यू गॉट 3/4, 4 - 3u1 हाँ, अपॉन माइनस -4। ऐसे आ गया ना। इसे इधर ले गए, 4 से डिवाइड कर दिया, 3/4 u1 - 1। ओके, इसे पुटिंग इन 1, यहाँ 1 में पुट करते हैं u2 को, पुटिंग इन 1 वी गेट। तो आप जब 1 में पुट करेंगे तो u1 स्क्वायर तो एज इट इज, u2 स्क्वायर मीन्स 3/4 u1 - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे जरा सॉल्व कर लो, देखो। तो u1 स्क्वायर प्लस 9/16 u1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 से 2 कट गया, 3/2 है ना, 3/2 u1। इज इक्वल टू 1। ये 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर u1 देखिए कॉमन आ रहा है सब में, u1 स्क्वायर, सो दिस मीन्स हाउ मच यू गॉट, कितना आएगा बताओ तो। इसे ऐड कर लो, देखो ये कितना हो गया, 16 और प्लस 9 25, 25/16 16 u1 u1 स्क्वायर माइनस 3/2 u1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। u1 अगर आपने कॉमन ले लिया तो यू गॉट 25/16 u1 माइनस 3/2 इज इक्वल 3/2। टू 0। तो 2 वैल्यूज यू विल बी गेटिंग, या तो u1 इज इक्वल टू 0 और u1 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लो जरा,
3/2 into multiply 16/, 16/25. कितना हो गया? 2 8 10 16, 40 to 24/24. 24/25. ठीक है। तो दो वैल्यूज आ रही हैं, देखो, एक u1 की वैल्यू ये आ रही है और एक u1 की वैल्यू ये आ रही है। तो जब u1 0 है तो u2 कितना होगा, यहाँ रख दो, -1, है ना। सो फॉर u1 इज 0, u2 इज -1, तो क्या डायरेक्शन आ गई? u इज इक्वल टू 0i -j, तो u इज इक्वल टू -j। एक डायरेक्शन तो ये है वेर इट्स वैल्यू विल बी 4, एंड फॉर u1 इज इक्वल टू कितना आया था? 24/25। ये आ जाएगा -8/25 कितना आ जाएगा? यहाँ पुट कर दिए, 3/4 u1 -7/25 -7/25, ओके, -7/25। so what is u, what is direction? u is equal to 24/25i and -7/25। और ये यूनिट वेक्टर तो हो गई, आप इसका मॉड लेंगे 1 आएगा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड कि ये 1 है ना। आप इसका मॉड लेंगे डेफिनेटली 1 आएगा। so you got two direction, at the two direction it will be give you the value duf -1 4, है ना, जो 4 आ रहा है ये। अगर आपको एंगल निकालना है तो एंगल आप निकाल सकते हैं बाय फार्मूला cos थीटा। तो cos थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? duf 1, -1 अपॉन mod del f mod u, ये फार्मूला हो जाएगा उससे, है ना। ये पता है आपको 4, इसके मॉड लिख दीजिए। mod del f कितना था? mod del f कितना निकाला था हमने भी? 5 आया था, 5 तो ये 5 था, और mod u और निकाल दो, mod u तो 1 है, Yes, है ना। sir. तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। एंगल भी निकाल सकते हैं आप चाहें तो, एंगल 53 हो जाएगा। हाँ जो भी है वो कैलकुलेट करो। तो अगर एंगल पूछा है तो यू कैन फाइंड एंगल, दैट इज नॉट अ बिग टास्क। तो मेन थिंग ये था। तो हियर इन दिस वे यू कैन फाइंड एंगल आल्सो, कि अगर हमें कोई उन तीनों के अलावा कुछ और डायरेक्शन चाहिए तो आई कैन फाइंड दिस। अब ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ कर लेंगे, -3 वाला सेम है, Yes, है ना, sir. बस -3 वैल्यू रख दी। yes sir चलो, इट वाज वन गुड प्रॉब्लम जो मैंने आपके यहाँ कराई है। नेक्स्ट वी हैव टेंजेंट प्लेन्स, नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट सेक्शन 14.6 यूनिट 2 का 14.5 आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सर अब रहने से टाइम भी खत्म हो गया। रहने दे, चलो ठीक है। टेंजेंट प्लेन बता दे रहा हूँ मैं, कल पढ़ा दीजिएगा। ट्यूसडे में क्लास हो गया, नेक्स्ट क्लास टेंजेंट प्लेन्स की बात करेंगे भैया नेक्स्ट उसमें, ठीक है। जैसे आपके पास टेंजेंट लाइंस थी तो आपके पास लेवल कर्व था, अगर लेवल सरफेस आ जाएगा, है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा? टेंजेंट प्लेन, क्योंकि जब सरफेस होगा आपके पास कोई, यू हैव सम सरफेस, सरफेस मतलब इस तरीके से, तो यहाँ पर एक पॉइंट पे व्हाट यू कैन फाइंड अ टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। सेम कंसेप्ट विल बी देयर, कि जो ग्रेडियंट आएगा आपका और ये जो dr/dt है, दे विल बी कमिंग 0। अब dr/dt क्या होगा? इट विल बी अ कर्व इन अ स्पेस, स्पेस कर्व होगा ये। r इज इक्वल टू gti, इट विल बी व्हाट? gti प्लस hcj प्लस सम pt, अगर p ले लें pt के, ठीक है। So I will discuss in the next class finding tangent planes to the level surfaces. ओके सर। चलिए फिर we will continue on Morning. the next class. Okay, thank you, sir. Okay, all the Thank you. Thank you, sir. thank you.